সৃজন খবর বাংলা, খবর যেখানে জীবনের কথা বলে। আমাদের সমাজে নারী জাতিকে মা, স্ত্রী, কন্যা, দিদি, বোন রূপে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বর্তমান সময়ে দেশ ও বিশ্ব জুড়ে সেই নারীর উপর চলছে অত্যাচার, অপমান, এমনকি ধর্ষণের মতো ঘটনাও। আর শুক্রবার সেই নারীকেই মাতৃজ্ঞানে দেবীর আসনে বসিয়ে পুজো করল কন্যগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠ। এদিন প্রায় 150 সধবা মহিলাকে হলুদ রঙের শাড়ি পরিয়ে হলো সুহাসিনী রূপে পুজো। শাস্ত্রে মা জগদম্বা বা দুর্গাকেই সুহাসিনী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সুহাসিনী শব্দের অর্থ সৌভাগ্যবতী। তাই এদিন মঠের আরাধ্যা দেবী মা রাজরাজেশ্বরী দেবীকে সুহাসিনী রূপে পুজো শ্রীযন্ত্রে আপেল, কমলালেবু, কাজু, কিশমিশ সহ বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে অর্চনের পর করা হয় 150 সধবা নারীকে পুজো। এমনকি এদিন 3 জন কুমারীকেও সেই সঙ্গে পুজো করা হয়। দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের সাজসজ্জার উপহারও। প্রায় 12-13 পদের রান্না করা খাবার খাওয়ানো হয় তাদের। মহিলারা মা রাজরাজেশ্বরী মঠের 64 যোগিনীকে বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে পুজো দেন। সবশেষে এইসব মহিলারা স্বামী স্বরূপানন্দের মূর্তির সামনে প্রতিষ্ঠিত স্বরূপেশ্বর মহাদেব ও নন্দী মহারাজকে প্রণাম করে তাদের মনস্কামনা জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দ্বারকা সারদা পীঠের পণ্ডিত রবি শঙ্কর দ্বিবেদী, কন্যগরের পৌরপ্রধান স্বপন দাস, প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, মঠের প্রধান পুরোহিত সচ্চি স্বরূপ, সঞ্জু মহারাজ সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন এই সুহাসিনী ব্রত উপলক্ষে মঠে এসেছিলেন দ্বারকা সারদা পীঠাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দের জামশেদপুরের অন্যতম ভক্ত শিষ্য ইন্দ্রজিৎ মল্লিক, নন্দজা মল্লিক, শুক্তি মল্লিক, সঙ্গীতা মল্লিক, সোমজিৎ মল্লিক, কৃষ্ণা দ্বিবেদীরা। তারা এদিন এই মল্লিক পরিবারের ইন্দ্রজিৎ মল্লিক ও নন্দজা মল্লিকের 7ম বিবাহ বার্ষিকীও পালন করলেন এই 150 জন সুহাসিনীকে পুজো করে ও তাদের আশীর্বাদ নিয়ে। পরে ইন্দ্রজিৎ বাবু ও নন্দজা দেবী এইসব সুহাসিনী দেবীদের হাতে বিভিন্ন ধরনের উপহারও তুলে দেন। এদিন পণ্ডিত রবি শঙ্কর দ্বিবেদী বলেন, আমাদের জীবনে নারীর মাহাত্ম্য সবচেয়ে বেশি। যেখানে নারীর সম্মান হয় সেখানেই দেবী শক্তি বিরাজ করে। ব্রহ্মচারী সচ্চি স্বরূপ বলেন, আমরা ধর্মপতি বলি না, কিন্তু আমরা বলি ধর্মপত্নী। তাই নারী বা স্ত্রী জাতিকে সম্মান দিলে আমাদের ঘরে শ্রীবৃদ্ধি হয়, ঘরে সৌহার্দ্য, সুখ, শান্তি বজায় থাকে। নারী বা স্ত্রী আমাদের কাছে অন্নপূর্ণা স্বরূপ। তাই আমরা মা জগদম্বার সামনে সুহাসিনী ব্রত পালন করি সমস্ত বিশ্বের নারী বা স্ত্রী জাতিকে সম্মান জানাতে। আর জামশেদপুর থেকে আসা গুরুজির একনিষ্ঠ ভক্ত শিষ্য ইন্দ্রজিৎ বাবু ও সোমজিৎ বাবুরা গুরুজির জীবনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরলেন আমাদের কাছে। আমরা ফিরে আসছি সেই খবরের পরবর্তী অংশে একটি বিরতির পর। जगते चानन सदा रहे, तू जो तानु जगाया है, तेरिया जोता अकबर जय राजे दासीस चुकाया है, राजे दासीस चुकाया है, राजे दासीस चुकाया है। सर्व कला संपूर्ण माई, हरकत रेच तू समाई, तन है मैया तेरी कमाई, दुखिया दी तू सुने दुहाई, दुखिया दी तू सुने दुहाई, दुखिया दी तू सुने दुहाई। चंदा सूरज ते सब तारे কেন করলেন? আজ এদের অ্যানিভার্সারির উপলক্ষে আমরা করলাম। কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, খুব আনন্দ লাগছে সবাইকে একসাথে। কি বলবেন সমাজে যে এত নারীদের প্রতি সেক্ষেত্রে হিন্দিতে सबके अच्छाई के लिए, सबकी भलाई के लिए आज ये सुहासिनी पूजन हम लोगों ने किया था। अम्बे ओ जगदम्बे माता, तू है जगदी जननी माता। अम्बे ओ जगदम्बे माता, तू है जगदी जननी माता।
दुखिया उत्ते मेहरा कर दी खाली गोदानू तू पर दी मुर्दे दे विच जान तू पावे अन्या नू तू अखियां जावे पाप जदों जगते वध जाए पाप जदों जगते वध जाए चंडी बन राक्षस को मुकाए साज के मंदिर आद कवारी करके शेरा दी असवारी सारे जगदा बनी सहारा भगतो सब बोलो माता दा जयकारा ओ भगतो सब बोलो माता दा जयकारा भगतो सब बोलो माता दा जयकारा भगतो सब बोलो बंगाल के महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम करके किया। उससे उन्होंने संकेत किया कि हमारा देश हमारी माँ के समान है और उसमें भी खास करके हम बंगाल में देखते हैं भगवती की आराधना प्रमुख होती है। भगवती को सुवासिनी माना गया है। सुवासिनी माने सौभाग्यवती। उसका पूजन करने से भगवती की पूजा हो जाती है। इसलिए भगवती का नाम भी है सुवासिनी अर्चना प्रीता, माने सुवासिनी की पूजन से प्रसन्न होने वाली, और वे स्वयं सुवासिनी रूप हैं। इस आधार पर हम आज समस्त स्त्री वर्ग को माँ के रूप में मानते हैं, बहन के रूप में मानते हैं और अपने जीवन के कल्याण के लिए एक कन्या को पत्नी के रूप में समाज के द्वारा दी हुई स्वीकार करते हैं। उससे हम अपने कुल की वृद्धि करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन में नारी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ समस्त दैवी शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। इस आधार पर हम सभी लोग ये आराधना करते हैं और इसकी प्रेरणा विशेष रूप से हमको भगवान आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में आए हुए महाराज स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज, जो द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, उनके द्वारा मिली। वे स्वयं भी सन्यासी होकर के भी कन्या पूजन करते थे, कन्याओं का चरण स्पर्श करते थे, सुवासिनियों का पूजन करते थे और उनका आदर करते थे। इस तरह से आज हम सभी लोगों को ये प्रेरणा मिली है। उसी स्थान में, जिस स्थान की स्थापना गुरु जी ने की है, इस राजराजेश्वरी सेवा मठ जो कौन नगर में है। कौन नगर भी स्वयं एक तांत्रिक नाम है। कौन का अर्थ होता है त्रिकोण, और उनका जो नगर हो वो कौन नगर। तो यहाँ जिस श्रीयंत्र की पूजा होती है उस श्रीयंत्र में 43 त्रिकोण हैं। इतने त्रिकोण किसी और अन्य यंत्र में नहीं मिलते। इस आधार पर ये भगवती का त्रिकोण जो यंत्र है, श्रीयंत्र है, जो भगवती राजराजेश्वरी का मूल मंत्र है, मूल यंत्र है, उसी का पूजन होता है। उसी के आधार पर इन योगिनियों का पूजन होता है जो सुवासिनी के रूप में मानी जाती है। जिना पहाड़ा उत्ते डरदे रब ने जन्म विना लिता, ओना पहाड़ा उत्ते मैया जिने डेरा ला लिता। मैया ने डेरा ला लिता, मैया ने डेरा ला लिता। जंगला दे विच मंगल लाए, था उत्ते मंदिर बनाए। श्रद्धा नाल जो दरते आए, ओहियो तेरे दर्शन पाए। ओहियो तेरे दर्शन पाए, ओहियो तेरे दर्शन पाए। कर कर दे विच वंडियां खुशियां हो, कर कर दे विच वंडियां खुशियां। कर कर नित जगराते दुखियां, तैनू अपने दुख सुनाए। तू सबना दे दुख मिटाए। तू सबना दे दुख मिटाए, तू सबना दे दुख मिटाए। इको तू है जिन्नू लगदा, इको तू है
जिन्नू लगदा हर एक दुखिया प्यारा ओ भगतो सब बोलो माता दा जयकारा ओ भगतो सब बोलो माता दा जयकारा भगतो सब बोलो ওনাকে যেমনি দেখেছিলাম ওনার মতন আর তারপর কাউকে দেখলাম না, যেমনি ওনাকে দেখেছিলাম ওনার মতন আর কাউকে পাইনি। ওনার উপস্থিতি সশরীরে নেই, কিন্তু উনি নিজের চিন্ময় সত্তা দিয়ে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে যাচ্ছেন এবং এই জীবনে যার আশীর্বাদেই আমরা চলছি। মেনলি এখনো যে আমরা করছি গান করছি ওনারই আশীর্বাদ। আপনি তো খুব কাছ থেকে দেখেছেন, একটু কথা বলুন না। আমাদের গুরুজি দেখুন শেষ কৃপা ছিলেন আমাদের ওপর, কেন পুরো বিশ্বের ওপর। উনি সবার শান্তির জন্যই উনি কামনা করতেন, অহিংসার জন্য বলতেন। এটাই দুটো ওনার সবচেয়ে বড়। ওনার সরলতা যেটা ছিল, সেই সরলতাটা ছিল ওনার সবথেকে বড় মানে অ্যাট্রাকশন। অত দুধু পিঠের জগৎগুরু হওয়ার পরও, জগৎগুরু শঙ্করাচার্য হওয়ার পরও তার ভিতরে কোনো দিন ক্রোধ, তার ভিতরে কোনো রকমের অভিমান আমরা কোনো দিন দেখতে পারিনি। তিনি একটি শিশুর মতন সরল হাসি দিয়ে সবার সাথেই কিন্তু খুব গম্ভীর কথা বলে যেতেন। সব থেকে বড় কথা, নারীদের ভীষণভাবে সম্মান করতেন। সেটা উনি পড়ালেখা এডুকেশনেও খুব করতেন। উনি সায়েন্সের ওপরও ওনার ভালো দক্ষতা ছিলেন, ভালো জ্ঞান ছিলেন, খুব জ্ঞান ছিল। উনি মহাজ্ঞানী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনেও তো অংশ নিয়েছিলেন। উনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। প্রেসিডেন্সি জেলেও জেল খেটেছেন কোনো কালে, গাজীপুর জেলেও জেল খেটেছেন কোনো কালে। রাম জন্মভূমি আন্দোলনেও উনি চুনার কোর্টে একবার হাউস অ্যারেস্ট হয়ে গেছিলেন। তো ওনার পুরো জীবনটাই কিন্তু ধর্মের স্থাপনার জন্যই উনি দিয়ে গেছিলেন। 11 বছর বয়স থেকে বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেছিলেন, আর 99 বছর বয়স উনি দেহত্যাগ করলেন। মানে প্রায় 90 বছর উনি কিন্তু ধর্মের জন্যই নিজের জীবনটা দিয়ে গেছিলেন। आज हम लोगों ने उसी व्रत का पालन किया। जगदम्बा का 300 नाम से हम लोगों ने अर्चन किया और सुभासिनी को बैठा करके उनका सम्मान किया, उनका पूजन किया। उनका पूजन करने से जगदम्बा बहुत प्रसन्न होती हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देवी। और वैसे भी जगदम्बा सुभासिनी का रूप है। तो वर्तमान में जिस तरह से स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो सभी लोगों को प्रेरणा मिले कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में स्त्री की कितनी पूजन है। क्योंकि धर्मपति नहीं कहा, धर्मपत्नी कहा है। आज जो स्थिति हो रही है, जिस ढंग से स्त्रियों के प्रति दुर्भावना लोगों के मन में आ रही है, जिस तरह से उनका अनादर लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जगदम्बा कुपित हो जाएंगी। तो माँ जगदम्बा से प्रार्थना किए, लोगों को प्रेरणा मिले कि हम लोग सुभासिनी का सम्मान कर सकें, पूजन कर सकें, जिससे घर में सौहार्द हो, घर में सुख समृद्धि हो और घर में श्री रहे। इस कारण से इसलिए जगदम्बा ने स्त्री का रूप लिया है। इस कारण से उनका पूजन किया। आज की पूजन का कोई विशेष महत्व है? पूजन की विशेष महत्व? सुभासिनी का पूजन हमारे सनातन धर्म में कन्या पूजन, मातृ पूजन, सुभासिनी पूजन का बड़ा ही महत्व है। अगर कोई व्यक्ति कुछ ना करे, शुक्रवार को या पूर्णिमा को किसी कन्या का पूजन कर दे, और अन्नपूर्ण सदापूर्ण पत्नी तो अन्नपूर्णा का स्वरूप है, जो घर में भोजन बनाती तो अन्न से मन बनता है, उसका सम्मान होगा तो आपके घर की स्त्री कभी नहीं जाएगी। इसलिए प्राचीन काल में भी भगवान राम ने यही किया। जब रावण ने महिलाओं का अनादर शो किया, तब उसका वध किया। सीता को वो ले गया, उनका अनादर जब किया, तब समूल नष्ट हो गया। इसलिए बाली को मारा उन्होंने। भाई के साथ साथ उसकी पत्नी के प्रति दुर्भावना ले आया, तो उसका वध हुआ। वर्तमान में आप पूरे विश्व की स्थिति आप देख लीजिए, महिलाओं के प्रति क्या भाव हो रहे हैं। 3-3 वर्ष की कन्या के साथ बलात्कार, तो पाशविक वृत्ति नहीं तो और क्या है। इन सबसे बचने के लिए हमारे पास है क्या?
इसलिए जगदम्बा का आराधन ही एक हमारे पास मात्र रास्ता है। उसी रूप में हम लोगों ने आज उनका सम्मान किया, पूजन किया। नवरात्र में हम लोग कुमारी पूजन करते हैं, अष्टमी को सुभासिनी पूजन करते हैं संधि पूजन के बाद। आज उसी रूप में हम लोगों ने एक उत्सव टाइप का रखा, जगदम्बा के चरणों में तरह तरह की वस्तु अर्पित करके पूरा सम्मान के साथ उन लोगों का सम्मान किया, भोग प्रसाद लिया। ये में वो आशीर्वाद दें जिससे हम लोग इस क्षेत्र में और बढ़ सके, सेवा कर सकें समाज देश की। নবগ্রাম ইন্ডেনের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই শুভ শারদীয়া, দীপাবলি, ছট ও জগদ্ধাত্রী পুজোর অভিনন্দন। প্রয়োজনে প্রিয়জন। নবগ্রাম ইন্ডেন, এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর। বর্ণনগর মাদার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল affiliated to Central Board of Secondary Education, New Delhi. Admission going on. ওম জুয়েলার্সের সোনার পরশে পাবে আপনার সৌন্দর্য অনন্য রূপ। কোন্নগরের ওম জুয়েলার্স। ওম সাইরাম এসএস অ্যাডভার্টাইজিং, মাত্র 6 টাকায় আর্জেন্ট ফ্লেক্স প্রিন্ট। এছাড়াও যে কোনো রকম ডিজিটাল প্রিন্ট। কোন্নগর চলচ্চিত্রমের কাছে। সৃজন, খবর বাংলা নিউজ।